Hello there. So only 40 days overall. It's like 42, but let's just say सिर्फ 40 दिन बचे हैं end के and I'm going to do a strategy that will clay everything together to give you maximum output होना चाहिए not by minimum workload भी आपका maximum रहेगा and output भी आपका maximum रहेगा उस type का है but this theory, this strategy will give you overall idea कि कैसे करना है सब कुछ. So let us begin. Why waste time? So I'm going to upload this video today. Today is 25th of May and let us start. So your study begins from 25th and 26th. I'm giving you only 2 days क्योंकि now you don't have time. In now अभी मैं 10-5 दिन करके वो सब नहीं, just 2 days you have to complete surgery. You need to revise because I'm taking into consideration कि आपका already हो चुका है. Surgery and radiology. Why surgery and radiology? क्योंकि radio के you just need to do lot of images from radiology and most of them will come in surgery also. So these two subjects go hand in hand. They like clay together. So that's why here in this strategy I'm doing subjects that are claying together, right? So 25th and 26th May को आपका surgery हो जाना चाहिए. Surgery and radiology too. Then 27th, 28th, 29th. Now I know obs gynae takes a little more because there are a lot of concepts. It is conceptual and question ऐसे आएगा जिसमें आपको दिमाग use करना पड़ेगा. Like there's lot of thinking, there's lot of understanding in obs and gynae. So I'm giving 3 days. So I'm not being partial. I'm trying to just maintain that thing, but not more than 3 days. I mean 3 days is the max time you're gonna get. So yeah. And PSM you're going to do in 2 days, 30 and 31st May तक के आपका हो जाना चाहिए. तो 31st May तक overall you are completing all your major subjects except for medicine, but medicine is the subject that you have to do every day. मतलब कुछ उसका करते जाना है रोज. अभी से लेके in 40 days at least give 1 hour में कुछ नहीं होता. So at least give 2 hours for medicine every day and you can arrange it. Okay, not that difficult. ठीक है. So 25 till 31st you have to complete surgery, obs gynae and PSM. होना ही चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है. फिर उसके बाद on 1st June you are gonna give GT. Listen, मैं हमेशा बोलते रहूँगी because GT is very very important and there are people who say कि नहीं यार 15 दिन पहले से GT देना बंद करो वगैरह. सुनो मेरी बात, okay? Just ये ऐसे टू अवॉइड द थिंग, लाइक मतलब आपको डर है सो जस्ट अवॉइड द थिंग. इससे कुछ नहीं होने वाला. एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू गिव एग्जाम जिसमें MCQ आने वाले हैं जो कि GT से काफ़ी मिलता जुलता है. तो अवॉइड करने से आपका घंटा कुछ होने वाला है, मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा. सो जस्ट गिव ऑन 1st of June. यू विल गेट ओवरऑल आइडिया दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग एट दिस क्रूशियल मोमेंट. आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. सो ऑन 1st June यू आर गोना गिव GT, right, and figure out your marks and also analyze subject wise वगैरह. देखो उसमें का subject analysis होता है, I think prep में होता है, marrow में होता है, right? I'm not sure about cerebellum का उन्होंने अभी तक नहीं किया होगा शायद, या फिर किया भी होगा. रिसेंटली मैंने कोई GT नहीं दी तो उस हिसाब से. बट देर इज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कि कौन से सब्जेक्ट में वेयर यू आर स्टैंडिंग. सो द सब्जेक्ट दैट यू आर वीक इन, देन यू विल हैव टू एडजस्ट समवेयर इन दिस. तो जो आपका बहुत अच्छे से सब्जेक्ट है जिसमें आपको यू आर स्कोरिंग लाइक 80%, 85%, 90%, सो गिव अ लिटिल लेस टाइम टू दैट एंड गिव मोर टाइम टू द सब्जेक्ट विच यू आर वीक इन, राइट? ओके, ठीक है. तो 1st June को आपको GT देना है. वट एवर इज अगर नंबर कोई भी बाई दिस ऑरेंज कलर है, सो दैट मीन्स ऑन दोज डे यू हैव टू गिव GT. ठीक है. तो 1st June को आप GT दोगे. फिर 2nd June से आप क्या करने वाले हो, लेट मी से. तो 2nd June को आप करोगे ऑर्थो. विथ ऑर्थो साइड बाय साइड यू आर गोना डू एनाटॉमी. साइड बाय साइड का मतलब ये नहीं कि ये हाथ में आप ऑर्थो खोल के बैठे हो, ये हाथ में एनाटॉमी. नो, नॉट लाइक दैट. जस्ट डिवाइड योर डे इनटू लाइक हाफ एंड हाफ. तो इन द मॉर्निंग यू कैन जस्ट फिनिश ऑफ विद ऑर्थो बिकॉज इट्स अ रियली स्मॉल सब्जेक्ट एंड उसमें के बस कुछ टारगेट पॉइंट्स करने हैं आपको जो आते हैं, लाइक योर नर्व इंजरीज, कौन सा फ्रैक्चर में कौन सा नर्व डैमेज होता है, कौन सा कास्ट लगाओगे आप, एंड ब्रेसेस ऑल्सो.
बस उतना ही करना है ऑर्थो का, और कुछ है? और हाँ, ऑन्कोलॉजी, कैंसर्स वगैरह वो सब करना है. सो व्हाट आई मीन टू से इज इट्स नॉट रियली वास्ट एंड यू कैन अगर आपका ऑर्थो कमज़ोर भी है तो आई थिंक 4 to 5 hours is maximum. You can cover it in that much time. तो हाँ, ऑर्थो करना है. फिर उसके बाद जितना आपका बचा कुचा दिन है उसमें एनाटॉमी करना है. एंड ऑल्सो थर्ड को आई एम गिविंग एनाटॉमी. सो बेसिकली यू गेट लाइक 1.5 days फॉर एनाटॉमी, राइट? ठीक है. उसके बाद फोर्थ को आप क्या करोगे? फोर्थ को आप फिजियो करोगे, राइट? यू आर गोइंग टू डू फिजियो एंड ऑल्सो फिजियो के साथ साथ यू आर गोइंग टू डू बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इट्स अ सब्जेक्ट कि वो कहीं पे किसी के साथ ऐसे मिलजुल के नहीं रहता. तो आई जस्ट कंबाइंड इट विद फिजियो एंड थोड़ा बहुत इट्स काइंड ऑफ सिमिलर. सो नॉट सिमिलर एट ऑल बट ऑल्सो सिमिलर, ओके, उस टाइप वाला. सो फिजियो एंड बायोकेम यू आर गोइंग टू डू 4th and 5th June. ठीक है. फिर उसके बाद 6th को आप क्या करोगे? 6th को आप साइकेट्री करोगे. साइकेट्री हार्डली टेक्स लाइक 2.5 hours, नॉट मोर देन दैट. देन उसके बाद आप एनेस्थेशिया करोगे 2 घंटा भाई. ये तो आपका लिटरली हाफ अ डे में हो जाएगा साइकेट्री एंड एनेस्थेशिया. बट आई जस्ट डोंट वांट टू बर्डन यू दैट मच, सो पूरा दिन ले लो. ठीक है. तो 6th इज़ लाइक योर ब्रेक डे, हाफ ऑफ द डे यू कैन जस्ट रेस्ट, सो जाओ एक्स्ट्रा उस दिन. बट उसके पहले ऑर्थो, एनाटॉमी, ये भारी भारी सब्जेक्ट है. 6 को आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हो. देन 7th को आप क्या करोगे? 7th को आप जीटी दोगे, राइट? व्हाई डिड आई राइट ओवर हियर? ओके. 7th को आप जीटी दोगे एंड जीटी देने के बाद आप एनालिसिस करोगे. एंड बिकॉज ऑफ्था इज सच एन ईजी सब्जेक्ट देन यू ट्राई टू कवर ऑफ्था ऑल्सो ऑन लाइक 7th. ठीक है. एक बार देखना ही होता है. एंड अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो 8 को आप ऑफ्था करोगे एंड ऑल्सो ENT, राइट? प्रीटी सिंपल एंड बहुत अच्छे से सब्जेक्ट है ये ऑफ्था ENT. सो सिंपल, यू कैन डू इट. देन 9th and 10th को आप क्या करोगे? सो 9th को आई एम गिविंग इट टू फॉरेंसिक. फॉरेंसिक के साथ कौन से सब्जेक्ट है 19 सब्जेक्ट में से जो थोड़ा बहुत आता है साथ में? सो डर्मा. I mean, इतना भी नहीं, बट दैट्स हाउ इट गोज. तो फॉरेंसिक में बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ अब्रेशन एंड स्किन के चेंजेस एंड स्टफ. इन डर्मा में भी यू आर स्टडिंग ऑल द लेयर्स एंड स्टफ. सो दैट्स वाई फॉरेंसिक एंड डर्मा. एंड देन 10th को फॉरेंसिक थोड़ा सा बड़ा है एंड थोड़ा सा आपको मोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा है फॉरेंसिक की. सो जस्ट टू प्ले इट बेटर आई एम गिविंग लाइक एक्स्ट्रा डे फॉरेंसिक. ठीक है. तो एकदम आराम से हो जाएगा. वी आर नॉट इवन रशिंग ओवर हियर, राइट? 11th को यू आर गोइंग टू डू फार्मा एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू फार्मा के साथ साथ यू विल बी डूइंग मेडिसिन. अभी मेडिसिन का क्या? ठीक है. वेट लेट मी जस्ट राइट एंड देन आई विल टॉक. सो 12th को भी फार्मा एंड योर मेडिसिन. व्हाट अबाउट दैट? सो लिसन, इन फार्मा देर आर सिस्टम वाइज होता है ना, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, देन ऑल्सो किडनी के ड्रग्स जैसे डायूरेटिक्स वगैरह कह लो. एंड देन it's system wise, right, in pharma. So whatever system you are doing, for example you are doing CVS, cardiovascular system, then medicine में वो कार्डियो का टॉपिक ख़त्म कर लो, बस उतना. अभी you will be covering all the systems side by side. उसका थोड़ा थोड़ा information main diseases in that system regarding medicine वो side by side कर लो. Okay, so pharma के साथ medicine you have to do. And then 13th को you are going to give GT. देखो ये जो GT के दिन मैंने दिए हैं इनको मत काटो यार प्लीज़. इट इज़ नॉट अभी बोलोगे दिस इज़ वेरी क्रूशियल मोमेंट एंड वी नीड टू यूज़ एज मच टाइम एज पॉसिबल टू ग्रास्पिंग का टाइम हो गया. आप सो रहे थे क्या 6 महीने? दिस इज़ द GT is like a simulation tool. For example, before they launch astronaut and the rocket and stuff, the person is given a lot of training ki they create atmosphere that is similar to that in space. So whatever you are doing over here, it's same. So GT is investment. Right now you can fight me that and say that this is crucial moment, हमें जितना चाहिए उतना लेना है. बट आप ले रहे हो. अरे भाई एग्ज़ाम में तो आपको अप्लाई ही करना है, तो अभी सिमुलेशन करो वो एनवायरनमेंट का अभी. सो GT इज़ द बेस्ट टूल एवर एंड नथिंग एंड एब्सोल्युटली नथिंग कैन रिप्लेस दैट. सो जहाँ पे भी मैंने GT बोला है प्लीज़ 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 गिव GTs ऑन दोज डेज. ठीक है. फिर उसके बाद 14th को यू आर गोइंग टू डू माइक्रो के साथ और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जो बैठ जाता है अच्छे से. आई वुड हैव सेड पैथो बट नो मुझे
थोड़ा सेपरेट सेपरेट रखना है। माइक्रो जब आप कर रहे हो तो अब पूरा दिमाग आपका माइक्रो का माइक्रो में ही रखो। ओके, सो माइक्रो ऑन 14th यू आर गोना डू, एंड देन 15th को हम क्या करेंगे। सो ओके, सो नाउ 15th एंड 16th को आप क्या करोगे। 15th को यू विल बी डूइंग पैथो एंड 16th को भी पैथो, बट साइड बाय साइड यू विल हैव टू डू मेडिसिन, side by side you will have to do medicine के important topics that correlate with patho, तभी के तभी you can do and sort it out like that. And then 16th को patho के साथ you will be doing pedia. Now let us count. So by 16th of June you are completing all your 19 subjects. Now let us count all the 19 subjects हुए हैं या नहीं, right? And medicine I have given like special time, but listen to me, medicine is a lengthy process, आपको थ्रू आउट करना पड़ेगा. So all 14 days आप 2-2 घंटे दे दो, एंड साइड बाय साइड ये जो आई डेंट एस्केप इट, क्योंकि कई बार आप सोचते हो अरे करना तो है 2-2 दिन, लेकिन अगर मैंने उसको टाइम टेबल में कहीं पे लिखा नहीं है तो चांसेस आर यू विल जस्ट नॉट डू इट ऑल. सो दैट्स व्हाई इंक्लूडेड दैट. Now let us count. So by 31st of May you are completing surgery, obs gynae, PSM and radio. That is like 4 subjects, right? And then आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yeah, you are completing all your 19 subjects. ठीक है. अभी 17th को again after completing all your 19 subjects, this is a really important GT, and this will give you where you stand. 17th of June को जो आप GT दोगे, it will tell you where you are right now and how much you need to buckle up, right? So 17th को please GT देना and analyze करना. जहाँ पे भी मैंने GT बोला है, I have given like minimum GT. ठीक है, ऐसे नहीं बोल रही कि रोज़ GT भी करो ये भी करो, but minimum amount of time, minimum, not too less, not too much also. So everything is balanced over here. Then 18th of June से again you are going to do your second round of revision. तो अभी मैंने जितना टाइम पहली बार में दिया था उसका लिटरली हाफ कर दिया है. तो as you can see over here, 18th को हम क्या करेंगे, 18th को हम ऑर्थो करने वाले हैं, ऑर्थो के साथ साथ आप एनेट करने वाले हो. देन 19th को you are going to do फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. फिर उसके बाद 20 को you are going to do साइकियाट्री. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक रेस्ट डे आपका 20. साइकियाट्री एनेस्थीसिया इज बेसिकली रेस्ट डे, क्योंकि आपका इजीली हो जाएगा. मैक्स टू मैक्स अगर आपने मज़े ले लेके भी पढ़ा तो भी 3-3 घंटा दे दो, उससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं, एंड बाकी का टाइम आप रेस्ट कर सकते हो. ठीक है. तो 20 को साइकियाट्री एनेस्थीसिया साइड बाय साइड इफ़ यू रियली हैव टाइम एंड देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट ऑल्सो, राइट. तो अगर आपको रेस्ट वगैरह भी नहीं करना है, इट्स वेल एंड गुड. व्हाट यू कैन डू इज़ जो भी आपके एनालिसिस थे, जो भी आपने GT अब तक के दिए उसका जो एनालिसिस है, जस्ट गो थ्रू इट अगैन. ठीक है. ऑल द GTs जितने आपने दिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी एनालिसिस वगैरह GT का उसी दिन हो ही गया. इसी 1 को मैंने आई जस्ट रोट GT एंड दैट्स इट. दैट मीन्स ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव GT एंड डू एनालिसिस एंड स्लीप. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक नॉट दैट हेक्टिक. मैं उसके साथ साथ को जोड़ नहीं रही हूँ. सिर्फ 7th को आई गेव ऑफ था बिकॉज इट्स प्रीटी ईजी, दैट्स वाई. एंड ऑफ था को दूसरा दिन भी मैंने दिया है. सो एवरीथिंग इज़ प्रीटी लॉजिकल, नथिंग इज़ इनसेन ओवर हियर, एवरीथिंग इज़ सेन, राइट. अभी 21 को आप क्या करोगे. 21 को यू आर गोइंग टू डू ऑफ था एंड साइड बाय साइड यू आर ऑल्सो गोइंग टू कंप्लीट ENT. ऑफ था एंड ENT आपको करना है, राइट. 22 को आप फॉरेंसिक करोगे एंड यू विल बी डूइंग डर्मा. देन यू हैव टू डू पैथो एंड मेडिसिन दे दो थोड़ा साथ साथ. ठीक है. पैथो एंड मेडिसिन. एंड देन 24th को माइक्रो एंड पीडियाट्रिक्स. लेट अस काउंट पूरे सब्जेक्ट हुए नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. हाय, कौन से सब्जेक्ट बच गए. हाँ, सर्जरी के साथ साथ इधर आप सर्जरी के साथ साथ आप रेडियो भी करोगे, राइट. ठीक है. आई गेस नाउ वी हैव कंप्लीट. तो 25, 26, 27 को, 25 को आप पूरा दिन दोगे PSM को अगैन. देन 26 को यू विल बी कंप्लीटिंग सर्जरी एंड देन रेडियोलॉजी. देन 27th को यू विल बी गिविंग कम्प्लीटली टू ऑब्स गायनी. परफेक्ट.
हाँ, now let us count again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. कौन सा एक सब्जेक्ट छूट रहा है? फार्मा. ओ माय गॉड, फार्मा छूट रहा है. तो फार्मा आप कहाँ एडजस्ट करोगे? ओके राइट. तो जहाँ पे मैंने एनालिसिस के लिए आपको टाइम छोड़ा था, देयर इज़ नो टाइम फॉर दैट. साइकेट्री एनेस्थीसिया आपका इजीली हो जाएगा. इट वोंट टेक साइकेट्री एनेस्थीसिया आपका इजीली हो जाएगा. यू नो, एज आई सेड, मैक्सिमम 3. अभी तो 3 आवर्स भी मत लो, जस्ट टेक 2 आवर्स एट द मैक्स. एंड देन बचा कुचा जितना भी दिन है, साइकेट्री प्लस एनेस्थीसिया, एंड देन बचा हुआ दिन यू आर गोइंग टू गिव इट टू फार्मा. राइट, सॉर्टेड. जैम पैक्ड है, एंड जैम पैक्ड होना भी चाहिए आपका दिन. ऐसे नहीं होना चाहिए आपको रेस्ट करने के लिए वगैरह. जो रात का टाइम मिल रहा है दैट इज़ इनफ. डोंट से अरे 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर स्लीपिंग 6 to 7 hours, इट इज़ ओके. Believe me, it is okay. I was sleeping 5 to 6 hours and I was completely fine. And if I can be fine, I'm a human being, you're a human being. It's okay. 6 hours more than enough यार. इससे ज़्यादा बनता भी नहीं है. इससे ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई करना बनता है, and that's it. 28 को again after completing all the 19 subjects, 28 is your second chance. It will tell you where you're standing on 28th of June. अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए. अगर आप हमेशा you'll try to just protect your own feelings and stuff, you can't go in the uncomfortable zone. आप हमेशा उधर ही रह जाओगे. You'll always need to put yourself in uncomfortable situations, तभी आपका ग्रोथ होगा. राइट, सो यू नीड टू गिव GT. जो लोग बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर कम मार्क्स आ गए तो आपका माइंड सेट, अरे क्या इज़ दैट रियल एग्ज़ाम? अगर रियल एग्ज़ाम में कम आ गए तो फिर कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा बैठता है. जो भी है, ट्राई मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एवरीथिंग. ठीक है, एंड ये तो आप फेस कर ही सकते हो. दिस इज़ नॉट रियल एग्ज़ाम. एंड अगर इससे भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो भाई देन डॉक्टरी इज़ नॉट योर फील्ड, राइट, फ्रैंकली. तो GT के लिए मैं आपको इतना अगर प्रेशर दे रही हूँ, इसका मतलब GT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, सिंपल पुट. ये ऐसी चीज़ है ना जो ओल्ड टाइम आर एंसेस्टर्स टेल कि नहीं ये बेटा करना ही चाहिए वगैरह. देन आर पेरेंट्स ऑल्सो. दिस GT इज़ समथिंग लाइक दैट. अगर बरसों से सदियों से हर कोई कह रहा है कि GT दो, तो आँख बंद करके दे दो. आपके भले के लिए कह रहे हैं, दे दो. ओके, सो GT आपको देनी है. मैं लिटरली आई एम पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन इट. 29 30 1 2 3 4 5 दैट इज़ 3 6 7 days. एक हफ्ता. लास्ट एक हफ्ते में आपको क्या करना है? लास्ट एक हफ्ते पे हियर यू गेव लाइक 2 revisions. बाय 27th of June you are completing 2 revisions. Now what you can do is जो बचा कुचा लास्ट के 7 days है उसमें आपको ये करना है कि try to revise only the high yield stuff. आपको पता है हर सब्जेक्ट में से कुछ तो भी परसेंटेज होता है. जैसे फॉरेंसिक से टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, देन योर IPC वगैरह. सो सर्टन फील्ड्स आर देयर इन ऑल द सब्जेक्ट्स कि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं. ओनली दोज हाई यील्ड टॉपिक्स यू आर गोना डू. लास्ट के एक हफ्ते में आपको यही छूना है, एंड दैट्स इट. राइट, ऑल्सो ये तो है ही. दिस इज़ लाइक अ साइड नोट दैट ओनली हाई यील्ड स्टफ. एंड other than that what you can do is then on 1st of July सर्जरी देख लो, उसमें के हाई यील्ड स्टफ देख लो. एंड बाकी 19 सब्जेक्ट के भी हाई यील्ड स्टफ आपको देखने ही है, लेकिन साइड बाय साइड सर्जरी को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दो. देन सेकेंड को हाई यील्ड स्टफ आपको पूरे 19 सब्जेक्ट के देखने ही हैं. उसके साथ क्या करोगे, आपको ऑब्स गायनी को ज़्यादा तवज्जो दो. फिर उसके बाद थर्ड को PSM करना है, एंड साइड बाय साइड ऑल योर इंपॉर्टेंट स्टफ आपका वो चलते रहेगा. एंड देन फोर्थ को मेडिसिन का इंपॉर्टेंट PYQs देख लो, या देन क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन होता है उसका मारवा सर का ऑन YouTube, तो आप वो वीडियोस देख लो वगैरह. सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू वर्क. फिफ्थ को नाउ माई रिकमेंडेशन इज यू कैन आइदर लव द रिकमेंडेशन और आइदर हेट इट, बट लिसन, दिस इज स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड. एंड
I literally used up all my neurons and all my experience into this, and what I suggested, जो मैंने खुद ने किया है, so ऐसे मैं हवा में नहीं फेंक रही, मैंने literally एग्ज़ाम के 2 दिन पहले I gave GT, I really gave GT. But my point is, listen to me. तो 5th को I recommend giving GT. I really recommend giving GT. But the catch over here is prep का मत दो. सेरेबेलम का भी या डिफ़िकल्ट वाला देखो आपको क्या देता है जो मैंने दिया था, मैरो का जैन का कोई तो भी, आई एम नॉट श्योर बट 2021 या 2022 आई लेट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लेट यू नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह, यू गाइज नो मेरा टेलीग्राम चैनल राइट. तो उसमें कि कोई तो भी एक आसान GT दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ PYQs, आई पोस्ट इट राइट, लिंक दे दूँगी, एंड वो वाला GT आपको सॉल्व करना है. तो ऐसी एक GT थी विच वॉज लाइक ऑल अबाउट PYQs एंड आई स्कोर रियली नाइस मार्क, अबाउट 225 मार्क्स मेरे स्कोर हो गए थे. तो वो ईजी वाली GT आपको देनी है, ईजी वाली, दैट मीन्स ईजिली आप even if you have completed all PYQs of all 19 subjects, easily you will cross about 200. तो इसमें तो आपका 200 आने वाला है, and then just relax. Just तो जो आसान वाली GT आप दोगे, that is going to help you build pseudo confidence, and you need that confidence ताकि दूसरे दिन you'll be in the zone of solving questions. If you are giving GT on 5th, and definitely आसान वाली दो, easiest वाली दो, ढूंढ के मैं आपको इजी वाली GT ढूंढ के दे दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट. इफ़ यू गिव दैट, इट इज़ गोना जस्ट प्रेप योर माइंड. एंड आपका 6 तारीख को जो एग्ज़ाम डे होगा, ऑन 6th एग्ज़ाम, it is gonna go amazing and you are gonna cross it with flying colors, you are gonna pass. तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने 2 रिविज़न डाली, उसके साथ साथ सारे GTs भी डाले, एंड ओवरऑल इट्स ऑल क्लेइंग टुगेदर वेरी नाइसली, एंड आई हाईली recommend you guys to follow this strategy because I used my brain into making this. So bye and best of luck. You can do this.